Hello everyone, welcome back to our channel. So we have done average value and RMS value in the previous lecture. Now we will see series RL circuit, series RC circuit and series RLC circuit. First we have take series RL circuit. So in series RL circuit, we take a load in which resistance and inductor are connected in series like this. This is VR voltage across resistor and this is VL voltage across inductor. See, since this resistor and inductor are connected in series, so hence it is called series RL circuit. Now अगर हमें इसमें KVL लिखना हो तो KVL कैसे लिखोगे आप? अगर इस लूप में घूमोगे तो मैंने बोला कि KVL लिखो। अगर आप KVL लिखोगे, सिंस ये AC सर्किट है, आप ध्यान रखना ये AC सर्किट है, सो ये टाइम डिपेंडेंट होगा। तो अगर हम इसका KVL लिखेंगे तो इसका KVL डायरेक्ट हम ऐसे नहीं लिख सकते -VT प्लस VR प्लस VL, दिस विल बी रॉन्ग बिकॉज इसके साथ ये सिंस ये AC सर्किट है तो एंगल होगा, इसमें भी एंगल होगा सिंस ये इंडक्टर है। ये भी मीन्स हमें जो KVL लिखना होगा वो इन फेज़र डोमेन लिखना होगा। सो इसे मानो मैंने V फेज़र रिप्रेजेंट किया और VR को, तो अब क्या लिखोगे -V फेज़र प्लस VR फेज़र प्लस VL फेज़र, इजंट इट? यही लिखोगे ना, फेज़र में तो ऐसे ही हम लोग लिखते हैं। सो वी कैन राइट इट फर्दर एज V फेज़र इज इक्वल्स टू VR फेज़र प्लस VL फेज़र. Now if you break this in I into impedance, this whole is what? Load, and load is impedance, means here the Z is what? R plus JXL, मीन्स यहाँ पे जो इम्पिडेंस की वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी R प्लस JXL. अब ये R प्लस JXL कैसे? देखो मैंने क्या बताया था कि AC सर्किट में जो इंडक्टर होता है उसे हम लोग क्या लिखते हैं, जब हमने R फेज़र देखा था, फेज़र रिलेशनशिप बिटवीन वोल्टेज एंड करंट, और जब हमने लोड में क्या लिया था, इंडक्टर लिया था, तो जो Z की वैल्यू निकल के आई थी वहाँ पे वो क्या निकली थी, ओमेगा एल, जे ओमेगा एल, और ओमेगा एल को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सएल बोलते हैं. सो Z विल बी जे एक्सएल इन केस ऑफ इंडक्टर. सो इसकी क्या होगी, इसकी इम्पिडेंस होगी ZXL, इसकी होगी R. सो टोटल इम्पिडेंस विल बी R प्लस ZXL. ओके, नाउ कम हियर. So we can write V phasor as I phasor into Z phasor, and this as I phasor into R plus the impedance of inductor will be JXL into I phasor, since current will be same in series. So from here you are also getting, if we cancel out this I, we are getting Z is equals to R plus JXL. Yes or no? And also if you will see the angle of V phasor will be what? अगर यहाँ से हमने एंगल निकाली तो देखो एंगल ऑफ V इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ VR प्लस 90 डिग्री, बिकॉज इसकी इंडक्टर की जो एंगल होती है वो क्या होती है, 90 डिग्री होती है. तो अगर हम इसका फेज़र डायग्राम ड्रॉ करेंगे तो कैसे होगा, since while drawing phasor diagram we take I as reference, so I'm taking I as reference because I is same. So in general we take I as reference in phasor. Okay, now what about VR? See, since we know that R is
in resistive circuit or in resistor, voltage and current follows a linear relationship, and also the phase angle between voltage and current is zero, means voltage and current in resistor are in same phase. So VR will be in the same direction of this I phasor, means let us say VR is here. See, which one is greater, VR is greater or I phasor is greater, that will be decided by this value, that is impedance Z, means R plus Z XL. I am just taking for convenience or to draw a phasor that VR is less than I phasor. This doesn't really means that VR is less than I phasor. ये किस पे डिपेंड करेगा, इम्पिडेंस पे. चलो अब यहाँ से देखो, अगर हमें वी फेज़र वी आर जो है वी आर में +90 कर देंगे, मीन्स इसके ये जो सॉरी, अब हमें वी आर एंगल से कितने कहाँ मूव करना है, +90 डिग्री जाना है. प्लस मीन्स वी ऑलरेडी नो दैट प्लस मीन्स एंटी क्लॉकवाइज, मीन्स यहाँ से हमें एंटी क्लॉकवाइज +90 डिग्री डायरेक्शन में जाना है. तो एंटी क्लॉकवाइज किधर होगा, इधर साइड. सो दिस विल बी आवर VL phasor, yes or no? No, and VR phasor will give what, V phasor. So V phasor will be this. Clear? Means पहले मैंने क्या किया, let us revise it. We have take I as reference phasor. Generally we take I as reference phasor. Okay. Now I phasor जब हमने लिया, उसके बाद देखा हमें क्या निकालना था, हमें इसका फेज़र डायग्राम ड्रॉ करना था. V phasor इज इक्वल्स टू VR phasor प्लस VXL phasor का. अब ये देखो कि I phasor मीन्स R जो है, R के केस में, रजिस्टर के केस में V और करंट मीन्स वोल्टेज और करंट सेम फेज में होती है. सो VR जो वोल्टेज होगी वो सेम फेज में होगी करंट की. सो हमने VR यहाँ पे फेजर ड्रॉ कर लिया. अब इनमें से कौन छोटी होगी कौन सी बड़ी होगी, ये किस पे डिपेंड करेगा, इम्पिडेंस के वैल्यू पे डिपेंड करेगा. नाउ इसके बाद क्या था, हमें VR से +90 डिग्री मूव करना था. सो प्लस को हम लोग एंटी क्लॉकवाइज से डिनोट करते हैं. जब हमने +90 डिग्री मूव किया तो ये कौन सी फेजर हो गई, ये VL फेजर हो गई. नाउ VR फेजर प्लस VL फेजर इज व्हाट, V फेजर. तो हमने यहाँ पे क्या कर दिया, फेजर वाला सम रूल लगा दिया. ओके, एंड दिस एंगल इज थीटा. नाउ दिस एंगल थीटा इज कॉल्ड पावर फैक्टर एंगल. सी, जब हम लोग पावर फैक्टर एंगल निकालते हैं तो हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, वोल्टेज पे जाते हैं. अगर हमें पावर फैक्टर एंगल निकालना है तो वी ऑलवेज टेक वोल्टेज फेजर एज रेफरेंस, बिकॉज इन द रियल टाइम सिस्टम द लोड्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल. ओके, सो वी विल फर्स्ट go on V phasor, means we will take V phasor as reference. So यहाँ पे आगे हम लोग V phasor पे, अब V phasor से हमें कहाँ जाना है, I phasor पे जाना है. तो जब, क्योंकि जो ये पावर फैक्टर एंगल होती है वो क्या होती है, वो तो V phasor और करंट फेजर के बीच का डायरेक्शन पोजीशन बताती है कि V phasor करंट फेजर के रेस्पेक्ट में कहाँ पे है, मीन्स कितने डिग्री लैग कर रहा है, लीड कर रहा है, यस और नो. सो हमें क्या करना है, V फेजर से करंट फेजर पे जाना है. अब यहाँ से यहाँ चले गए तो ये क्या हो गई, हमारी पावर फैक्टर एंगल. ओके, तो चलो यहाँ से हम लोग 3 चीज़ें निकाल सकते हैं, 3 चीज़ें ड्रॉ करते हैं. मीन्स इन जनरल फर्स्ट इज वोल्टेज ट्रायंगल. देखो वोल्टेज ट्रायंगल क्या होती है, वोल्टेज ट्रायंगल सिंपली यही होती है. इसमें ये क्या होता है, ये VR हो जाता है, ये VL हो जाता है, और ये V, और ये एंगल थीटा. एंड सेकेंड इज इम्पिडेंस ट्रायंगल. इम्पिडेंस ट्रायंगल क्या होती है, R, XL एंड Z. इन केस ऑफ व्हाट, RL सीरीज सर्किट, ये होगी हमारी वोल्टेज ट्रायंगल और ये होगी हमारी इम्पिडेंस ट्रायंगल. ओके, नाउ अगर यहाँ से मैंने मैग्नीट्यूड निकालने बोला आपको V का, so how will you find the magnitude of V? Simply you will write it as apply triangle rule. This is a right angle triangle, so this hypotenuse will be under root VL square plus VR square, isn't it? So
we will get the value of V. Now what we have to find? We have to find the angle of this theta, means cos phi angle, because V phasor is what? V angle theta. This is its magnitude. We already got the magnitude by what? By using triangle rule, means V root over VL square plus VR square. Now how to find this angle theta? Now this theta we can write it as, see, if you calculate tan of theta, tangent of theta means this opposite by base, means VL by VR. So theta, from here we will get theta as equals to tan inverse VL by VR. So for finding theta, we will take tan inverse of VL by VR. Now one more thing, if, and this is the power factor angle. What about power factor? We will simply calculate power factor as, we will write power factor as what? Cos of theta. And cos of theta from this triangle, voltage triangle, what we will get? Base by hypotenuse, means VR by V. So cos theta will be VR by V. And one more thing, lagging. सिंस हमने आई फेजर को रेफरेंस लिया है, हम लोग हमेशा क्या करते हैं? आई फेजर को फेजर डायग्राम ड्रॉ करने के लिए रेफरेंस लेते हैं. सो आई फेजर इन केस ऑफ एल, व्हाट वी नो दैट इन केस ऑफ इंडक्टर, इफ सिंपली इंडक्टर इज कनेक्टेड इन अ सीरीज, मीन्स अगर इस, हमने जो क्लास में करा था, क्या किया था कि वोल्टेज सोर्स ली थी, उसमें एक इंडक्टर कनेक्टेड था, तो उस टाइम पे जो करंट हो रही थी वो 90 डिग्री से लैग कर रही थी इन केस ऑफ प्योर इंडक्टर. सो यहाँ पे रजिस्टर और इंडक्टर दोनों आ गया, मीन्स अब यहाँ पे जो इम्पिडेंस की वैल्यू वो तो आर प्लस जे एक्सएल हो गई, लेकिन जो करंट का नेचर था वो चेंज नहीं होगा, मीन्स करंट जो है वो इस इंडक्टर की वजह से यहाँ पे लैग करेगा. सो हम लोग यहाँ पे क्या बोलते हैं? इन केस ऑफ इंडक्टर, मीन्स इन केस ऑफ आर एल सीरीज सर्किट, मीन्स और इन केस ऑफ आर एल सर्किट, तो हम क्या बोलते हैं कि पावर फैक्टर जो होता है वो क्या होता है? लैगिंग होता है. एंड लैगिंग मीन्स व्हाट? लैगिंग मीन्स इफ anywhere lagging is given, means it is simply signifies that current is lagging from voltage. Okay, because we take current as reference. Now come to this impedance triangle. So in case of an impedance triangle, see, here also z is equals to r plus j xl. और मैंने पिछले क्लास जब मैंने एपरेंट पावर, एक्टिव पावर, रिएक्टिव पावर जब कराया था, तो उस टाइम पे मैंने बताया था कि जेड की जो एंगल निकल के आती है, जेड की एंगल जो निकल रहा है, एंगल मीन्स हमने जब पावर फैक्टर को डिफाइन किया था, तो पावर फैक्टर को हमने जेड के टर्म में भी डिफाइन किया था. सो यहाँ पे देखो, आर से हम लोग 90 डिग्री, ये सिंस जेड एक्सएल है, सो 90 डिग्री पॉजिटिव क्या मीन्स एंटी क्लॉकवाइज, एंड दिस विल गिव रिजल्ट इन जेड फेजर, एंड दिस विल बिकम व्हाट? इम्पिडेंस ट्रायंगल. सो यहाँ पे क्या है? ये जो एंगल होगी हमारी, वो क्या होगी? पावर फैक्टर एंगल होगी. ओके, नाउ फ्रॉम हेयर हाउ विल यू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ जेड? सिंपली हेयर ऑल्सो वी विल अप्लाई ट्रायंगल रूल, आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर, and for theta will write as tan inverse xl by r, and cos theta will be r by z, and here also means same circuit. So lagging power factor. So you can calculate cos theta by using, if a value of VR and V, means if V in the question VR and V is given, then you can find the value of cos theta, and also you can find the value of cos theta by using R by Z. अगर कहीं पे ये ना दिया हो और Z की वैल्यू दी हो, तो Z से, अगर आप Z से तो ईजिली हम लोग R प्लस जे एक्सएल कैलकुलेट कर सकते हैं, मीन्स R और एक्सएल को सेपरेट करके फिर हम लोग cos थीटा मीन्स पावर फैक्टर निकाल सकते हैं. ओके, now third is what I told was power angle, power triangle.
So what is power triangle? See, in power triangle, this is P, this is Q, and this is S. When we were talking about complex power, we find the relationship between complex power, active power, and reactive power as S is equals to P plus JQ. Yes or no? दिस इज कॉम्प्लेक्स पावर से तो हमारी एक्टिव पावर और रिएक्टिव पावर निकल के आ रही थी, तो इसका जब आप फेजर ड्रॉ करोगे तो ये हो जाएगा ट्रायंगल। पी से फिर 90 डिग्री हम लोग अपवर्ड मूव करेंगे, मीन्स एंटी क्लॉकवाइज, तो ये हमें क्या दे देगी, कॉम्प्लेक्स पावर दे देगी। नाउ अब ये जो ट्रायंगल होता है इसे हम लोग पावर ट्रायंगल बोलते हैं। ओके, नाउ from here the magnitude of S will be what, P square plus Q square, and if we want to find the power factor, cos theta will be what, P by S, and theta will be tan inverse this QL by P or Q by P. So in RL series circuit हम लोग पावर फैक्टर तीन मेथड से निकाल सकते हैं, मीन्स तीन फार्मूला हमारी पावर फैक्टर के लिए आती है, दैट इज वी आर बाई रेजिस्टेंस वोल्टेज बाई टोटल वोल्टेज मीन्स द सोर्स वोल्टेज, सेकेंड इज रजिस्टर बाई वैल्यू ऑफ रजिस्टर बाई impedance value, and third is active power by complex power. Okay, so this is about series RL circuit and uh, how the phasor diagram look like in series RL circuit. Now let us write down some points about power factor. First point, which what, power factor angle means you can write as, see, power factor angle, what is it, power factor angle is what, means what it is indicating, it is just indicating the position of, means this position of current phasor with respect to which, with respect to voltage phasor in general, means power factor angle indicates the position of current phasor with respect to voltage phasor, and we know that in RL circuit means in the presence of L, what current lags voltage, so the whole power factor will be in RL series, what it will be lagging. This is the first point we are getting. Now the second point, which I have already told you, that while defining the power factor for any circuit, voltage phasor is taken as reference, मीन्स यहाँ पे जब मैंने पावर फैक्टर एंगल डिफाइन किया था तो क्या किया, वोल्टेज फेजर को मैंने क्या बोला कि रेफरेंस लो, और यहाँ से हमें इस यहाँ पे आने के बाद हमें करंट फेजर के पे मूव करना है, तो जितनी एंगल वोल्टेज फेजर से करंट फेजर जाने में बन रही है वो क्या हो जाता है, हमारा पावर फैक्टर एंगल. सो राइट डाउन, while defining the power factor for any circuit, voltage phasor is taken as the reference phasor, because what I have told, that in real time system the loads are connected in पैरेलल, मीन्स हमारे हाउस होल्ड हो गई या फिर कहीं भी हो गई, जहाँ पे भी हम लोग देखते हैं जो लोड्स होते हैं वो कैसे कनेक्टेड होते हैं, पैरेलल में कनेक्टेड होते हैं. पैरेलल में कनेक्टेड होते हैं तभी तो हर एक लोड पे हमारी जो वोल्टेज की वैल्यू जाती है वो 220 वोल्ट के अक्रॉस होती है, मीन्स 220 वोल्ट और 240 वोल्ट के बीच में होती है, मीन्स सेम वोल्टेज हर एक अप्लायंसेस को प्रोवाइड होती है. वाई? बिकॉज दे ऑल आर कनेक्टेड इन पैरेलल. सो for while defining the power factor, what we take voltage phasor as reference, और voltage phasor से हमें current phasor पे move करना होता है, और जो angle बनती है वो क्या बन जाती है, power factor angle. Now third point is power factor also tells us how much apparent power is utilized. See,
We know that the magnitude of apparent power and complex power is same. So मीन्स हमारे एपरेंट पावर क्या थी? एपरेंट पावर वो थी कि हमने अज्यूम किया था इतनी पावर लोड पे ट्रांसफ़र होनी चाहिए, लेकिन बीच में लॉसेज हो जाते या फिर कुछ बीच में लॉसेज हो जाते जिस वजह से पूरी पावर यूटिलाइज नहीं हो पाती। अब यहाँ से पावर फैक्टर से हमें पता चलता है कि एपरेंट पावर कितनी यूटिलाइज हुई है हमारी। ओके, अगर हमारे पास इसका सिंपल सा मीनिंग समझो, ये जो Q की वैल्यू आती है वो किसकी वजह से आती है? मीन्स ये जो JQ का, ये जो रिएक्टिव पावर का जो टर्म आता है वो किसकी वजह से आता है? एनर्जी स्टोरिंग एलिमेंट, एंड एनर्जी स्टोरिंग एलिमेंट इज RL&C। सो इन दोनों की वजह से क्या आता है? ये रिएक्टिव पावर रोल में आता है। अगर मानो P इज इक्वल्स टू S हो जाए, मीन्स P की मैग्नीट्यूड मीन्स टोटल एक्टिव पावर जो हो जाए हमें जो लोड पे मिले वो इक्वल्स टू दिस कॉम्प्लेक्स पावर हो जाए, एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ कॉम्प्लेक्स पावर इज नथिंग बट इक्वल्स टू एपरेंट पावर। मीन्स जो हमारी एपरेंट पावर मीन्स जितनी हमने अज्यूम की है कि इतनी लोड पे ट्रांसफ़र होनी चाहिए, वो टोटल की टोटल जब ट्रांसफ़र हो जाएगी तो ये जो कॉस थीटा की वैल्यू हो जाएगी वो क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी। इसीलिए हम लोग की जो डिज़ायरेबल पावर फैक्टर की वैल्यू होती है वो 1 होती है, बट वी नेवर गेट कॉस थीटा इज एज इक्वल्स टू 1, वी नियरली गेट्स इक्वल्स टू 1। मीन्स पावर फैक्टर एंगल जनरली हम लोग को 0.85, 0.9 ऐसे करके बहुत ज़्यादा करेक्शन करने पे 0.95 इतनी मिलती है, 1 कभी एग्जैक्टली नहीं मिलती। ओके, सो इससे क्या इंडिकेट हो रहा है? अगर एस का कितना पार्ट मीन्स एपरेंट पावर का कितना पार्ट हम लोग यूटिलाइज कर पा रहे हैं एज अ एक्टिव पावर, अगर हमने पूरी पार्ट यूटिलाइज कर ली तो दिस कॉस थीटा विल बी इक्वल्स टू 1। नाउ लेट अस मूव टू व्हाट, लेट अस कैलकुलेट एवरेज पावर। सी हमने एवरेज पावर ऑलरेडी कैलकुलेट पिछले क्लास में कर रखी थी कि पी एवरेज we were getting as Vrms into Irms into cos theta. If you calculate the P average of this circuit, you will also get the same result. Let us verify it. We can write P average as 1 by T upon its integration between 0 to T into P dt. This is average power or not? It's integration of instantaneous power over its time interval, and its time interval is T. So 1 by T 0 to T Vt into It into dt. What is the value of Vt? 1 by, since see if voltage is leading in the RL series circuit, what voltage leads and current lags. तो अगर हमने करंट फेजर को हमने क्या रेफरेंस फेजर माना था, और करंट फेजर को अगर हम लोग लिखते हैं आई एम साइन ओमेगा टी, सो वी क्या हो जाएगी हमारी? वी एम साइन ओमेगा टी प्लस थीटा। दिस पावर फैक्टर एंगल इतने से ही ना वोल्टेज फेजर लीड कर रही होगी, तो ये क्या हो जाएगा? इसमें ऐड हो जाएगा। सो वी कैन पुट द वैल्यू ऑफ वी टी एंड आई टी हियर। सो वी एम साइन ओमेगा टी प्लस थीटा into Im sin omega t dt. So this will be Vm Im by 2t 0 to t sin A into sin B को ब्रेक करते हैं। sin A into sin B is what? 2 sin A into sin B is cos A minus theta minus A minus B minus A plus B. So here since sin A into sin B is given, so we have divided it by 2. Cos of theta omega t minus theta minus omega t, this will be cos of theta minus cos of 2 omega t plus theta dt. Yes or no? See, this is what? This is constant, and this one is variable, means this is time dependent, and we know that this is a sinusoid, and the integration of sinusoid over its time interval, we are integrating this sinusoid in its time interval, so the value of this will be 0. One as Vm Im
by 2t into cos of theta into t. This t will be cancelled out. So you can write it as Vm by root 2 Im by root 2 cos of theta. So this will be Vrms Irms cos of theta. We are getting the same result of P average. So this P average value is everywhere applicable. So P average will be Vrms into Irms into